So next chapter is time. What do we use to see the time? We use clock to see the time, right? So let's see what you have already learned about time in your previous class. The minute hand takes 5 minutes to move from one number to next. एक मिनट हैंड को 5 मिनट्स लगते हैं एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए. नो ये नंबर्स कौन से हैं जो आपको क्लॉक के ऊपर दिख रहे हैं? फ्रॉम 1 to 12. और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. ये आपने पढ़ रखा है, राइट? When the minute hand is at 3, time is quarter past the hour. जब भी आपकी मिनट हैंड 3 पे होती है उसको हम बोलते हैं क्वार्टर पास्ट द आवर, जहाँ पे भी आपकी आवर हैंड होती है. When the minute hand is at 6, the time is half past hour. जब आपका मिनट हैंड 6 पे होता है तो हम उसको बोलते हैं half past the hour. When the minute hand is at 9, the time is quarter to hour. जब आपका मिनट हैंड 9 पे होता है तो हम उसको लिखते हैं time is quarter to that hour, जो भी आवर शो हो रहा होगा आवर हैंड पर, राइट? तो अभी तक आपने 2 हैंड्स देखी हैं क्लॉक के ऊपर. वन इज मिनट हैंड, अनदर वन इज hour hand, right? So here we have some examples. Read the time, show it on the clock, write the time in the given space. It is quarter past 5. Quarter past 5. Quarter past में आपकी मिनट हैंड कहाँ पे होती है? मिनट हैंड is on 3 and hour hand between 5 and 6. Between 5 and 6. And we write it as 5. यहाँ पे क्या होता है? कितने मिनट्स होते हैं? ये 3 तो आवर, मिनट कितने होते हैं? 3 5 15. So here we write 15 minutes, right? Next, half past 3. It means minute hand should be on 6 and hour hand should be between 3 and 4. 3 and 4, right? And we write it as 3 hour. Here we write hour and here we write minute, right? So when the minute hand is on 6, that doesn't mean 6 minutes. इसका मतलब है 6 5 30. 30 minutes. So it is 3:30, right? Next, 40 minutes after 6. After 6. पहले 6 clock कर देते हैं, ठीक है? By hour hand. 40 minutes after. 40 minutes. देखो यहाँ पर होता है 5, 10, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, right? So 40 minutes, it means your minute hand should be on 8, right? So this is 6:40. Next is 8 o'clock. Hour hand will be on 8 and minute hand will be on 12. So we write it as 8, right? Next, look at the following scenes. Write the time in AM or PM. The time before 12 o'clock, that is written with the AM, and after 12 is written with PM, right? So walking. Walking कब हो रही है? ये देखो, it is our hand is between 7 and 8. It means 7 hours. And how many minutes? 6 5 30 minutes, right? So walking is done in the morning, so before 12. So here we write AM, right? Next, let's look here. Playing. When do you do playing? Afternoon, right? So the time is, you can see our hand is between 4 and 5. So we will take 4 for hour, and for minutes 3 5 15. 15 minutes. And now what to write? AM or PM? PM, right? First reading. PM. Right? So we are done with what we have already done in the previous class. ये बस आपका एक revision था, right? So let's move to the main chapter now. Next we have warm up. A boy says,
आ बस कम्स एट 8:05 AM। एक लड़का कहता है कि उसकी बस 8 o'clock और 5 minutes पे आती है इन द मॉर्निंग। AM मीन्स इन द मॉर्निंग। इट इज़ 5 minutes आफ्टर 8 o'clock। सेकेंड गर्ल ने सेम टाइम को और तरीके से बोला है, उसने कहा इट इज़ 5 minutes आफ्टर 8 o'clock, यानी कि 8 o'clock होने के बाद 5 minutes है। We can say time is 5 minutes past 8। ठीक है, आफ्टर को आप और क्या बोल सकते हो, पास्ट, राइट। नेक्स्ट इज we say time is 8:05। ठीक है, इसी टाइम को एक और गर्ल ने कैसे बोला है, 8:05, राइट। So here it is mentioned, hour hand is at 8 and minute hand is showing pointed toward 1, right? Next, let's read what is written here. There are 12 numbers and 3 hands on the clock's face। देखो अभी हमने 2 hands तक पढ़ा था। नेक्स्ट न्यू हैंड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, वो होती है सेकेंड हैंड, राइट। तो एक क्लॉक में आपको 12 नंबर्स मिलेंगे और 3 हैंड्स मिलेंगे। आवर हैंड इज स्मॉल एज कम्पेयर टू मिनट हैंड। जो आपकी आवर हैंड होती है वो मिनट हैंड से छोटी होती है। अ वेरी थिन लॉन्ग हैंड मूविंग फास्ट इज कॉल्ड सेकेंड हैंड। एक पतली सी लाइन होती है, थिन लाइन होती है, राइट। वो जो थिन सी आपकी हैंड होती है, ये जो ग्रीन कलर से शो करी है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड हैंड। इट कंप्लीट्स 1 राउंड इन 1 मिनट। ये एक राउंड 1 मिनट में कंप्लीट करती है। इट मीन्स, ये देखो यहाँ 60 सेकेंड्स लगते हैं, राइट। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट। There are an equal number of markings between 2 neighboring numbers। ठीक है, जो आपके 2 neighboring numbers होते हैं, neighboring का मतलब बिल्कुल साथ में, ये 12 के बिल्कुल साथ 1 है ना, इसके बीच में स्मॉल मार्किंग्स होती हैं। कितनी होती हैं देखो, 1 2 3 4 5, राइट। 12 के बाद ये देखो, ये तो 12 का हो गया ना, इसको काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5। ये नेक्स्ट आवर तक आते आते स्मॉल मार्किंग्स कितनी आई हैं, 5, राइट। तो देखो ये जो 1 मार्किंग है ना, ईच मार्किंग स्टैंड्स फॉर 1 मिनट। एक एक जो स्मॉल मार्किंग है ना, आप कह सकते हो कि 2 आवर्स के बीच में 4 स्मॉल होती हैं, 2 आवर्स के बीच में, राइट। द मिनट हैंड शोज 5 मिनट। ये तो इसका दिखाया हुआ है, ठीक है, इसमें भी 5 मिनट शो कर रहा है। Each small marking stands for 1 minute. The minute hand takes 1 minute to move from one marking to next. जो आपका मिनट हैंड होता है ना, वो एक मार्किंग से दूसरी मार्किंग तक जाने के लिए, हम स्मॉल मार्किंग की बात कर रहे हैं, राइट। ये वाली स्मॉल मार्किंग, इस 1 मार्किंग से सेकेंड मार्किंग तक जाने के लिए कितना टाइम लेता है, 1 मिनट, ओके। There are a total of 60 minutes in 1 hour। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना कि 1 आवर में टोटल 60 मिनट्स होते हैं आपके, राइट। नेक्स्ट वी हैव सम प्रैक्टिस पार्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जहाँ पे आप ये जो नंबर्स लिखे होते हैं ना, फ्रॉम 1 to 12, ये होते हैं आपके आवर्स, राइट। अगर आर हैंड इन पे आती है तो हम डायरेक्टली यहीं से लिखते हैं, बट अगर मिनट हैंड इन नंबर्स पे आती है तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखते, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं 1 से 12 तक, ये आवर्स के लिए। अगर रेड वाली आर हैंड आ जाती है इन पे, फिर तो हम वैसे ही नंबर उठा के लिख देते हैं, राइट, यहीं से लिख देते हैं। बट अगर मिनट हैंड इन नंबर्स पे आ जाती है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। Look at the clock and tell me the time. The short hand is between 7 and 8 and the long hand is at 4. When the minute hand is at 1, it means 1 5 is 5 minutes past the hour, ठीक है। अगर 1 पे आपकी मिनट हैंड जाती है, that doesn't mean 1 minute। उसका मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट हो गया, उसका मतलब है 1 5 is 5 minutes हो गया। 5 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। 2 का मतलब क्या होता है, 2 5 is 10 minutes। 3 पर अगर आपकी मिनट हैंड है, दैट मीन्स 3 5 is 15 minutes। और अगर 4 पर आपकी मिनट हैंड है, दैट मीन्स 4 5 is 20 minutes past the hour। जो भी आर हैंड आपकी जहाँ पे भी होगी, राइट। द शॉर्ट हैंड इज बिटवीन 7 and 8, द लॉन्ग हैंड इज एट 4, सो टाइम इज 20 minutes past 7। 20 क्यों लिखा है, क्योंकि 4 5 is 20 हो गया, राइट। यहाँ पर से 20 मिनट्स मिल गए।
7 और 8, तो पहले कहाँ पे है? 7 पे है ना, 7 को क्रॉस कर लिया है, अभी 8 को क्रॉस करना है, तो हम 7 लेंगे, राइट। सो द टाइम इज 20 मिनट्स पास्ट 7, क्योंकि 7 के बाद मिनट लिखने हैं हमको, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 10.1, ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक एंड राइट द टाइम। लॉन्ग हैंड इज एट 6, चलो लॉन्ग हैंड 6 पे बना देते हैं, दैट इज मिनट हैंड, राइट, वो मिनट हैंड है। शॉर्ट हैंड इज बिटवीन 2 एंड 3, शॉर्ट हैंड जो है आपकी वो 2 और 3 के बीच में बनाते हैं। अभी देखो ये 2 से 3 को जा रही है, पर अभी 3 पे गई नहीं है, ठीक है, अभी इसने 2 को ही क्रॉस किया है, तो हम क्या लिखेंगे? देखो अभी हमें मिनट्स भी चाहिए, ये 6 से क्या मिलेगा? 6 5 30 मिनट, राइट। सो हाउ टू राइट इट? 30 मिनट्स पास्ट आवर कितने हुए? 2, राइट। नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग हैंड इज एट 5, लॉन्ग हैंड 5 पर है, इट मीन्स मिनट हैंड 5 पे है। मिनट्स कैसे निकालने हैं? 5 5 25, इट मीन्स 25 मिनट्स, राइट। शॉर्ट हैंड इज बिटवीन 8 एंड 9, शॉर्ट हैंड इज बिटवीन 8 एंड 9, यहाँ बना देते हैं, राइट। तो अभी देखो ये 8 को क्रॉस कर गया, पर अभी इसने 9 को क्रॉस नहीं करा, तो हम 9 नहीं लिख सकते, 8 लिखेंगे, राइट। सो हाउ टू राइट इट? 25 minutes past 8, right? Next, look at each clock, write early, on time or late. Early होता है कि जो टाइम पर काम होना था उससे पहले ही हो गया है। On time मतलब जो आपका प्रपोज टाइम था उसी टाइम पे काम हुआ है। Late means जो आपका टाइम था that was proposed for the particular work, उस टाइम पर नहीं हुआ है, उससे लेट हो रहा है, ठीक है, उससे बाद हो रहा है, after that time, then we say it's late, right? So let's see, it's about टीना। टीना को अपना लंच जो है वो 12:15 PM पे करना होता है, ठीक है, बट आज उसने कब कर लिया? टीना एट इट, आज उसने इस टाइम पे कर लिया है, तो आवर हैंड इज बिटवीन 11 and 12, तो हम 11 लेंगे, राइट। एंड मिनट हैंड इज ऑन 9, व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब होता है? 9 5 45 मिनट्स, 9 मिनट्स नहीं लिख सकते क्योंकि 9 तो आवर्स है, मिनट हैंड है ना इसके ऊपर, तो 5 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स निकालने पड़ेंगे, दैट मीन्स 45 PM। देखो लंच कर, सॉरी यहाँ पे हम PM नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप AM लिखोगे, राइट। इट इज बिफोर 12, ये 12 से पहले का टाइम है ना, इट्स बिफोर द नून, सो AM। अभी देखो लंच करना था 12:15 PM पे, बट उसने कर लिया है 11:45 AM पे, इट मीन्स अर्ली हो गया ना, बिफोर द टाइम, उसने अपना लंच टाइम से पहले कर लिया है, सो इन दिस केस इट इज अर्ली। नेक्स्ट, स्कूल लेफ्ट आउट एट 3:30 PM, ठीक है, वेनू को जो छुट्टी होती है ना वो 3:30 PM पर होती है, बट देखते हैं वेनू किस टाइम पे चला गया है। इट इज बिटवीन नहीं है, ये पूरा 4 पर है और ये पूरा 12 पर है, इट मीन्स 4 o'clock, इसको हम लिख सकते हैं लाइक दिस। तो स्कूल से लेफ्ट आउट होना था इस टाइमिंग पे, बट वेनू इस टाइम पे जा रहा है, इट मीन्स इट इज आफ्टर दिस टाइमिंग, सो इन दिस केस वेनू इज लेट, वेनू लेट है यहाँ पर, राइट। Next we have exercise 10.2. Draw the hands on the clock to show the written time. यहाँ पे आपको टाइम बता दिया गया है and you have to show that time by drawing the minute hands on the clock face, right? So first time है आपका 1:24. तो hour hand तो कहाँ बनेगी आपकी? 1 लिखा है तो it should be between 1 and 2. 1 और 2 के बीच में बनेगी, right?
अब आपके 24 मिनट्स हैं। अभी आप क्या करो, पहले आप 20 मिनट्स तक जाओ। यहाँ पर 5 होता है, यहाँ पर 10 हो जाता है, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, यहाँ पर 20 होता है, हमें चाहिए 24, 21, 22, 23, 24, यानी कि यहाँ पर तो हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, राइट, ताकि कोई मिस्टेक भी ना हो, राइट। नेक्स्ट 6 6, दिस इज वेरी क्लोज, 6 और 7, 6 आवर्स हैं तो 6 के थोड़ा पास बनाएंगे, राइट, थोड़ा दूर करेंगे आवर हैंड। नेक्स्ट इज 6 मिनट्स, तो 1 पर हो जाता है 5 मिनट्स, राइट, और हमें एक और मूव करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 होता है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, राइट। तो यहीं पे आपको ड्रॉ करनी है मिनट हैंड, राइट। 5 से एक आगे 6 हो जाएगा ना। नेक्स्ट 11:56, पहले आप क्या करोगे, आवर हैंड बिटवीन 11 एंड 12, ये देखो 56 हुआ है, 4 मिनट्स के बाद तो 12 o'clock वैसे ही हो जाएगा, तो हम इसे थोड़ा पास रखेंगे 12 o'clock के, राइट। दिस इज योर आवर हैंड फ्रॉम दिस। अब 56 किसके पास है, 50 के पास है, राइट। यहाँ पे 5 होता है, 10, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स हो जाते हैं। टेबल कर रहे हैं ना, 6 5 जा 30, 7 5 जा 35, 8 5 जा 40, 9 5 जा 45 एंड 10 5 जा 50, 50 तक तो आ गए। अभी 11 5 जा 55, 55 यानी कि यहाँ पे 56 हो जाएगा, तो आपको इधर ड्रॉ करनी है मिनट हैंड, राइट। लुक एट द क्लॉक एंड राइट द टाइम। अभी आपको क्लॉक को देखना है और टाइम लिखना है, बोथ इन द नंबर्स एज वेल एज इन द वर्ड्स। नंबर्स में भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 7:48 एंड 7:48 वैसे लिखना है आपको, राइट। आपकी आवर हैंड देखो, इट इज बिटवीन 3 एंड 4, तो हम क्या लेंगे 3, so 3 hours एंड मिनट हैंड इज ऑन 7 से देखो थोड़ा सा आगे है, 7 से थोड़ा आगे पॉइंट करिए इधर। 7 5 का 35, 35 से एक आगे क्या होगा 36, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे 3 30 एंड 6, right. So next one is आपका आवर हैंड, इट्स बिटवीन 8 एंड 9, तो हम क्या लेंगे 8, राइट। नेक्स्ट मिनट हैंड 3 से एक नंबर आगे है, राइट, इधर है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 3 5 जा 15, 15 से एक आगे 16, so here we have to write 16. Now how to write it in the words 8 16, right. Next read the time on clock and write it in 3 ways. अभी आपको क्लॉक के ऊपर जो टाइम दिखाया है ना, उसको रीड करना है और उसको 3 ways में लिखना है, 3 तरीके से लिखना है, राइट। So the first one is, आपके आवर्स लिखे हुए हैं, मिनट्स लिखने हैं आपको। देखो ये कहाँ पॉइंट करिए, आपकी मिनट हैंड इधर पॉइंट करिए, यहाँ पर, राइट। तो 3 पर हो जाता है 3 5 जा 15, है ना, यहाँ पे 15 मिनट्स हो जाते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 16 17 18 19, so 19 मिनट्स, राइट। Here we have to write 19 मिनट्स। अभी नेक्स्ट पूछा है डैश मिनट्स आफ्टर 3, 3 के बाद कितने मिनट्स है 19, डैश मिनट्स पास 3 19, राइट। नेक्स्ट वेयर इज योर आवर हैंड, इट इज बिटवीन 9 एंड 10, तो हम क्या लेंगे 9। वेयर इज योर मिनट हैंड, ये मिनट हैंड पॉइंट करिए इधर, राइट, यहाँ पे हो जाते हैं 35 36 37 एंड दिस इज 38, तो यहाँ पे आप लिखोगे 38, राइट, 38 मिनट्स। हम इसको कैसे लिखेंगे 38 मिनट्स आफ्टर
9:38 minutes past 9, right? Next we have hour hand is between 7 and 8, so we choose 7. Minute hand कहाँ point करिए देखो इधर 7 पे हो जाता है 35 minutes, 36 and 37. So here we have 37 minutes. पहले हम आफ्टर लिख देते हैं. After 7, 37 minutes